After the recent street vendor evictions in Bengaluru by the BBMP, the Bengaluru Street Vendors Association called for a press meet discussing their concerns, demands, and the next plan of action. They said that the evictions were illegal and in violation of the Street Vendors Act 2014. In the past 6 months, street vendors in Bengaluru have been facing evictions in clear violation of the law. In July, in Mahadevapura, over 1,000 street vendors were forcibly removed from their livelihoods. Similar evictions occurred in Malleshwaram, Jayanagar 4th Block, and Panashankari in November. Many attribute the recent political shift to the Karnataka Congress winning over the BJP due to the latter's alleged mismanagement. The public believed that the Congress government would bring about positive changes in the lives of common people, especially marginalized street vendors who suffered greatly during the COVID-19 lockdown. Few communities of street vendors have become scapegoats due to the BJP's hate politics. The eviction raises concerns about the current government's commitment to the welfare of the poor, who played a pivotal role in the electoral victory of the Congress. There is a Street Vendors Act of 2014. The Street Vendors Act was passed by all parties in Parliament, and the lead was taken by UPA too, where the Congress was in a majority. Now the Street Vendors Act is being violated by the current state government, which is a Congress government. According to the Street Vendors Act, a survey had to be done after the act was passed, and the town vending committee was set up. Now town vending committees are set up, but the survey has not been done. There was a survey done under NULM scheme in 2017. Now a survey has to be done. Until that is done, nobody can be evicted. But they're evicting people, there is no notice given, goods are seized, and the goods are seized and no mazar is made, no list is made, no independent witness are signing, the goods are not being returned. So if this continues, we will be forced to do a protest. See, we are not blocking roads. There are some areas where there is a small issue, without any doubt. But to resolve that, there is a town vending committee. When the town vending committee is there, the issue has to be discussed there. But the problem here is evictions are happening without any discussion in the town vending committee. That is the big problem. See, this is an ID card given by BBMP after a survey in 2017. And this ID card was valid till February 2022. Now they've extended the validity of this card in South Zone, but not in other zones. We are saying similarly, a survey has to be done and ID card given to all street vendors. So how is the process to apply for it? And you don't have to apply for it. They have to come to the road and verify that you're vending there, and they have to do it. Do they charge any fees for No, there is no fees charged for this. This is to be done free. ನಮ್ಮ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ನವೆಂಬರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇವರು ನಮಗೆ ನೋಟಿಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಟಿಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಲಿಟ್ಕರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೈನ್ ತಂದು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಯಾರ. ಐಟಮ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತುಂಬ ನಡೀತದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸು ಇದೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಲೋನ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಲೋನ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಇದ್ರಿಗೆ BBMP ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಈ ಕೆಲಸ. तो शहर के अंदर तुमने मालूम रहे जैसा पिछले एक 4-5 महीने के अंदर जो है अलग अलग इलाके के अंदर फुटपाथ के व्यापारियों को उठाना, उनके मालों को जब्त करना, इनको व्यापार रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इनकी रोज़ी रोटी चाहिए, इसकी तरफ से इन्होंने ज़िंदगियाँ कर ले को जा रही. लेकिन एक तरफ हमें लड़कों वो पीरियड से भी जब से प्रॉब्लम शुरू हुआ तब से भी हमें पूरा एक होको, हमें लड़कों हुकूमत से हमारा राइट्स बना को अब ये राइट्स बन को और टाउन वेंडिंग कमेटी भी बन को है और इसके अंदर इलेक्टेड होको फुटपाथ के स्ट्रीट वेंडर्स को अलग अलग एरिया से उनको टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर्स बना को ही. जब भी प्रॉब्लम होता है इनको उठाना, टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर BBMP भी रहती है, पुलिस भी रहती है और स्ट्रीट वेंडर्स भी रहती हैं. एक मशवरा करना, उसके दायरे के अंदर जो तय होता वो हिसाब से, यानी कि फुटपाथ के व्यापारियों को तकलीफ़ नहीं होना, उनकी रोज़मर्रा की रोज़ी चलते रहना, ये हिसाब से. अगर से ट्रैफिक के इलाके में तकलीफ़ हो रही है, कानते भी एक ऐसी जगह जहाँ पर उनकी रोज़ी जहाँ पहले चलते थी रोज़ी उसी तरीके का पैमाने पर वहाँ पर उनकी रोज़ी रोटी चलना. तो ऐसे इलाके ढूंढ को उनको इंतज़ाम कर को हुकूमत देना चाहिए. क्या भी बगैर नोटिस के, बगैर बोले, बगैर पूछे रहते आको यहाँ व्यापार कर नहीं सकते. हमने ऑर्डर आ गए, ऑर्डर कापी दो भाई, नहीं ऐसा. जैसा तुम्हें देखते महादेवपुरा, बनशंकरी, जयनगर, यहाँ अलग अलग टाइम पर मल्लेश्वरम, अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से मार्शल्स के साथ आना, मार्जर कर को चीज़ें लेना, वो भी नहीं करते. रहते चीज़ें उठा लेना, उसे फ़ाइना डालना, वो भी फ़ाइना छोटे मोटे आदमी लंबा चौड़ा फ़ाइना. अगर ये भरे तो भी उनका माल पूरा नहीं मिलता. ये सिचुएशंस क्रिएट कर ले को जाना, डराना धमकाना, ये चल ले को. हालांकि हिंदुस्तान के अंदर पहले
नौकरियाँ नहीं सो एक प्रॉब्लम, गरीबी एक प्रॉब्लम। ऐसे में जो खुद हमें रोजी रोटी ढूंढने को हमें हिंदुस्तान के अंदर जो है बेरोजगारी की जो एक हद है उसे कम करी। शिवाजी नगर में बिज़नेस करता हूँ, कपड़ों का बिज़नेस करता हूँ मैं कम से कम 11 साल की उम्र से शिवाजी नगर में बिज़नेस कर ले हूँ। बचपन से वो चीज़ हिसाब से आ गई। अब वो सोच क्या है, अब हम आई, हमारे बच्चे नहीं आना फुटपाथ के ऊपर आको व्यापार नहीं करना करो, अच्छे से अच्छी तालीम कर रही, अच्छे से अच्छी स्कूलों में डाल को कोशिश कर ले को जा रही। अब ये बीच में आको उठाना, दुकाना उठा को ये कर डालना, भगा डालना और माला पकड़ ले जाको, जैसा हमारे ज़मीर भी बोले माजर नहीं सका उठा ले को जा रही। वो माजर पूछे तो उसका जवाब नहीं दे रही, क्या भी बात नहीं हो रही है। अब क्या तो भी बोलेगा तो उन्होंने ले को अब जब सामान जब्त करती, जब ले को जाती तो ले जब BBMP ऑफिस में रखना नहीं। वो वार्ड बाया वो उन्होंने पीवाना जो आती ना उनके साथ मार्शल से अभी वो दूसरे जो उनके घर में के अंदर ले जाकर उनको जो घर ये हो को होती उनके घर में ले जाकर माला रखनी, उसके वीडियो सभी हमारे पास। और उनको बोले तो उन्होंने हमारे से बात भी नहीं कर सकते, उन्होंने हाई जोड़ उत्तर उल्टे सीधे बातें करती, जाओ आओ करो। और हमें बन को इन फ़ैना कोई दिल्ली में ऐसा का 10,000 5,000 6,000 के फ़ैना बोलना सभी। हाँ, हमारी भी कहते भी छोटी मोटी गलती है तो हमने बुला को बिठा को ऐसा नहीं ऐसा करके बोले तो हमें फुटपाथ के ऊपर कैसा डिस्प्ले कर को हिसाब से व्यापार कर ले को जाती। अब हम ना ओवर होगा, रोज़ आ रही, सुबह को आ रही, शाम को डर के जगह होगा कौन आता कि कहाँ जाता कि कर। हम नमाज को जाने के वास्ते भी उड़ा को चले आते थे, अब वो भी देख को सोच समझ को जाने का होगा क्या कहाँ आ जाती कि आँख उठा लग जाती। हाफिसाना दूरी खड़े रहती, बड़े बड़े हाफिसाना कॉर्पोरेशन के कौन भी आंदे वो JW इन सभी कौन तो दूर खड़े रहती। अभी जो छोटे लाइन वॉल में क्या की लाइन में क्या की बोल मशीन में क्या की बोलती उनको उन्होंने सब आको हाथ उठा को डाल लेती। उनके आधे आती आधे नहीं आते, कितने की जब्त कर लेती, देरी नहीं, चाहे कितने चीज़ें आ रही उतनी चीज़ें चले जा रही। अब वो वैसा हो को है उसमें चले जा रही, अब वो हिसाब से चलने को जा रहा। मुसलमान के लीडरों को हमें क्या बोल रही है तो पूरे 2000 गली गली फिर को मेहनत पड़े उनके वास्ते। कांग्रेस आना एक बार कांग्रेस आना, क्या वास्ते भी कांग्रेस आना करो, सब जगह सब फोटोआँ हर चीज़ जो फिरे करे शिवाजी नगर के हिसाब से भी। मुसलमानों को क्या हमारे कौम के लीडरों को जो है एक रिक्वेस्ट हमारे से हमना भी देखो क्या काम थे। और एक बात दूसरी जगह बाजारों को यहाँ से उठा लिया बाजारों को गए तो हमने ऐसा ट्रीट करती मुसलमान पूरे हमें जाको वहाँ करे तो ऐसा है लाख बर्दू एत्ती बिसाक्ति भी नहीं होगी आकड़े इकड़े बरबारदू और दुनिया के मारा खाको हमें बाजारों को जाको दुनिया के मारा खाको होगी। अभी एक जगह है, एक हिसाब है, वो हिसाब से हमें चलने को जा रही। हमना आप हमारे कौम के आदमियाँ कौम के हिसाब से सबको बताए, खाली कौम के नहीं है पूरे भी बीदी में सब जने ही बुढ़े लंगड़े लुल्ले सब हैं, वो सब हैं। उनके रिक्वेस्ट हमना ज़रा हमना देखो, हमना सहूलत कर को बात कर को ये रहम करो हमारे ऊपर। हमारे MLA साहब जो हैं से रिजवान अरशद साहब उन्होंने हमना बोल को दुकाना बोल के जाते थे BBMP वाले आए तो उन्होंने बोल को हमना बैठो घर को बिठाने के वास्ते बोल को बिठा डाली। बैठो घर को 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने पहले बहुत तंग कर डाले, आको बहुत माला उठा डाले। अब आको उन्होंने बोल को उनके पास हमें जाने में जाकर रिक्वेस्ट बोलने में जाओ मैं बोलता हूँ करतूँ कर को बोल को हमना इजाज़त देखो बैठो तुम्हें, उसके बाद में क्या है सो कर को बैठ को मीटिंग कर को बुला दूँगा।